Hello friends, my name is Vikas. So friends, we have an app by the name Carriers Cloud which you can go and download using the Play Store. Once you have downloaded it, you need to log in with your Google ID, and once you have logged in, you will be moved to this page. And here you can see the current affairs section. Here is your all courses, my courses, doubt section, and your home section where we will be providing you with the current affairs quizzes and the PDFs if you have purchased our course. For the course, we offer multiple courses. The courses are very good and will be helpful to you based on your 1 year preparation or 2 year preparation. You can choose any of them. In the course, we provide you current affairs in both Hindi as well as English. In current affairs section, we provide you daily current affairs, weekly current affairs, as well as monthly current affairs. In daily current affairs, we'll be providing you with not just the content, also we'll be giving you a 20 questions quiz daily so that you can assess your performance. Similarly, in weekly, we will be giving you on weekly basis a quiz of 50 questions which you can assess. Apart from that, we'll be giving you a combined PDF of the whole week that will be containing important current affairs of that weeks, and same for the monthly basis. Apart from this, we do topic wise current affairs, that is there are multiple topics such as apps and web portals, important days, books and authors, national affairs, international affairs. So all these topics are covered by us on our YouTube channel where you can refer to those videos. And apart from this, we also cover the banking questions and banking exams. So the courses will be very helpful to you, they will be very beneficial to you. I suggest you to go and check our courses, and if you made up your mind to purchase the course, you can use the code Vikas10 and you will be getting an additional 10% discount on the purchase you make. So go now, check our courses because they are very helpful and will be very beneficial to you if you are preparing for the government exams. तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, टॉपिक रिलेटेड टू इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी क्योंकि इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड सरकारी एग्जाम्स के लिए आपका एक ना एक इंडेक्स तो ज़रूर पूछा जाता है आपसे। तो ये आप बिल्कुल नोट डाउन करके चलना और एंड तक ज़रूर देखना इस वीडियो को। तो आइए फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स की बात करेंगे। एकदम वन लाइनर फॉर्मेट में हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जो टेबल्स मिलेंगे ना, आपको मेक श्योर करना है कि आप इंडिया की रैंक और जिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो पर्टिकुलर इंडेक्स रिलीज़ किया गया है या वो रिपोर्ट रिलीज़ की गई है, ये दो चीज़ तो आपको नोट डाउन करनी करनी है अगर आप नए बच्चे हैं। तो आइए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टेल अवीव की, या फिर इससे पहले हम देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये एक रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज़ की गई थी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इसमें बताया गया कि वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी और वर्ल्ड की चीपेस्ट सिटी। तो पहले वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी की बात करें तो वो है टेल अवीव। ये टेल अवीव क्या है? टेल अवीव जो है ना, ये आपकी कैपिटल है किसकी? इजराइल की। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि किस कंट्री में सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है एज पर EIU, तो वो इजराइल में है। उसके बाद आपका पेरिस आता है, फिर सिंगापुर आता है। ठीक है, और अगर हम बात करें वर्ल्ड की चीपेस्ट सिटी तो वो है सीरिया की कैपिटल डेमेस्कस। इसी को वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिटी कैपिटल भी बोला जाता है। वर्ल्ड की ओल्डेस्ट कैपिटल क्या है? डेमेस्कस। ठीक है, ये डाटा EIU के द्वारा रिलीज किया गया। डाटा प्रॉपरली देखें, EIU के द्वारा रिलीज किया गया। वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है इजराइल की, सेकंड पे पेरिस, फिर सिंगापुर, फिर जुरिच और फिर आता आपका हांगकांग फिफ्थ पोजीशन पे। और वर्ल्ड की सबसे चीपेस्ट सिटी की बात करें तो वो है डेमेस्कस, जो कि सीरिया की कैपिटल है, जिसको वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिटी कैपिटल सिटी भी बोला जाता है। फिर इसके साथ साथ आपको याद रखना है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसमें इंडिया की क्या रैंक रहेगी? इसमें इंडिया की रैंक है 59th आउट ऑफ 110 कंट्रीज। इस डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का ये थर्ड एडिशन था जो कि रिलीज किया गया था। ऑर्गेनाइजेशन जिसने रिलीज किया था वो एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, सर्फ शार्क। ठीक है, EIU की बात करें तो ये 1946 में इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका लंदन UK में है। देखो, हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगर आपने याद हुआ तो कोई भी एग्जाम होता है ना, जैसे UP टेट हुआ था अभी रिसेंटली, मैं चेक कर रहा था, टीचिंग एग्जाम होता है, उसमें आपके हेडक्वार्टर्स पूछे हुए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, आप ना चाहते हुए भी आप सोचें कि नहीं मैं नहीं छोड़ देता हूँ, लेकिन पूछे जाएंगे आपसे। फिर ग्लोबल चीफ इकोनॉमिस्ट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? साइमन बैप्टिस्ट।
नेक्स्ट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं मल्टीपल टाइम्स, वो कौन सा कॉर्पोरेटिव है वर्ल्ड में जिसने टॉप किया है इन द टॉप 300 कॉर्पोरेटिव्स, तो वो है आपका इफ्को। ये इन द वर्ल्ड कॉर्पोरेटिव मॉनिटर जो आपका निकला था उसमें ये डाटा रिलीज किया गया और बोला गया इफ्को IFFCO, फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिट है। इसका नंबर 1 रैंक रहा है अमंग द टॉप 300 कॉर्पोरेटिव्स इन द वर्ल्ड एज पर द 10th एनुअल कॉर्पोरेटिव वर्ल्ड मॉनिटर रिपोर्ट जो अभी रिलीज की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करना, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 2009 की रैंकिंग के हिसाब से इफ्को टॉप पर, सेकंड पे गुजरात कोऑपरेटिव मिल मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, फिर जेनो थर्ड पे एंड सो ऑन। नेक्स्ट हम 3 ऑर्गेनाइजेशन का याद रखना, आपको पता है आर्म्स क्या हो जाता है, आपके हथियार। तो ग्लोबल आर्म्स मैन्युफैक्चर की अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज की सिप्री के द्वारा, जिसमें बताया कि जो वर्ल्ड के टॉप 100 आर्म मैन्युफैक्चरर्स है ना, उसमें इंडिया की 3 कंपनियों का नाम है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और इंडियन ऑर्डेंस फैक्ट्रीज। इन तीनों का नाम आता है अमंग टॉप 100 ग्लोबल आर्म मैन्युफैक्चरर्स में। ये सिप्री के द्वारा रिलीज की गई। इनकी रैंकिंग फिर एक बार देख लेते हैं। रैंकिंग आपको हॉल की 42, इंडियन ऑर्डेंस फैक्ट्री 60 और 66 आ जाती है भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की। सिप्री के द्वारा डाटा रिलीज किया गया, तो आपको सिप्री की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। रैंक देख ली, हॉल की क्या है 42, 60 इंडियन ऑर्डेंस फैक्ट्री और 66 भेल की भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की हो गई। अब इसके साथ साथ आप ये देखना कि टॉप 5 कंट्रीज जो कि सबसे ज़्यादा आर्म्स की सेल करती है वो है US, चाइना, UK, रशिया और फ्रांस। तो सबसे ज़्यादा जो सेल कर रही है अराउंड 54% USA की कंपनीज कर रही हैं आर्म्स का सेल। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 की। इंडिया स्किल रिपोर्ट के अनुसार ये बताती है कि कौन सी स्टेट में ज़्यादा स्किल प्रोवाइड की, कौन सी स्टेट में बच्चे एम्प्लॉयबल हैं आफ्टर गेटिंग दैट स्किल, कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, इसके बारे में। तो महाराष्ट्र ने अभी टॉप किया है अमंग द स्टेट्स फॉर द मोस्ट एम्प्लॉयबल टैलेंट इन 2022 की स्किल रिपोर्ट के अनुसार। ये स्किल रिपोर्ट VBox के द्वारा रिलीज़ की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये 9th एडिशन था, ये ध्यान रखना। महाराष्ट्र ने टॉप किया है इसमें, ठीक है, फॉलोड बाय UP एंड केरला। फिर आपको थीम याद रखनी है कि इस इंडिया स्किल रिपोर्ट की थीम क्या थी, री इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड स्किल बिल्डिंग फॉर फ्यूचर ऑफ वर्क। ये थीम रहेगी आपकी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 के 9वें एडिशन की, जो कि VBox के द्वारा रिलीज किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया, ठीक है। ये तो हो गया। और इसके साथ साथ क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, स्टेट विद द हाईएस्ट पोल ऑफ एम्प्लॉयमेंट टैलेंट किसने टॉप किया, महाराष्ट्र ने। स्टेट विद मैक्सिमम हायरिंग एक्टिविटी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है। या फिर सिटी विद द मोस्ट हाईली एम्प्लॉयबल रिसोर्सेज कहाँ पे, पुणे, महाराष्ट्र। सिटी का नाम आ जाए तो पुणे, वरना स्टेट महाराष्ट्र। कितने अच्छे क्वेश्चंस। फिर देखिए टॉप पे महाराष्ट्र, UP, केरला, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया। तो याद रखना इंडिया ने टॉप किया, इंडिया 4th पोजीशन पे रहा है इन द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया। ये डाटा लोई इंस्टीट्यूट के द्वारा रिसेंटली रिलीज किया गया था, एशिया पावर इंडेक्स 2021, जिसमें इंडिया की रैंक रही 4th मोस्ट पावरफुल कंट्री आउट ऑफ 26 कंट्रीज, ठीक है। पहले पे USA, सेकंड चाइना, थर्ड जापान, 4th इंडिया और 5th पे आ जाता है आपका रशिया। लोई इंस्टीट्यूट ने डाटा रिलीज किया था और कह सकते हैं एशिया पावर इंडेक्स 2021 का डाटा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में इंडिया की क्या रैंक रही। इंडिया की रैंक रही 56। IMD क्या होता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की डाटे की बात की जा रही है, जिसमें इंडिया की क्या रैंक रही 56। इसमें टॉप किसने किया, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया, ठीक है। ये याद रखना किसने टॉप किया, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया। किसके द्वारा पब्लिश किया गया ये डाटा, IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया था, ठीक है। कि टैलेंट कौन सी है, बच्चे में वहाँ टैलेंट है या नहीं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि यही फिर स्किल्स हो जाती है। जैसे इंडिया में महाराष्ट्र ने टॉप किया तो वर्ल्ड में स्विट्जरलैंड ने टॉप किया। नेक्स्ट यहाँ पे फिर डाटा देख सकते हैं, पहले पे स्विट्जरलैंड, दूसरा स्वीडन, तीसरा लग्जमबर्ग, चौथा नॉर्वे, पांचवा डेनमार्क और इंडिया आता है आपका 56 पोजीशन पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। अभी एक डाटा रिलीज किया गया जिसमें बताया गया कि वर्ल्ड अभी हमारा अनप्रिपेयर है अगर फ्यूचर में कोई पेंडेमिक आ जाती है, और ये डाटा है आपका
ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में। आपको फिर ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स से रिलेटेड डाटा पता होना चाहिए। इंडिया की रैंक रहेगी इसमें 66 आउट ऑफ 195 कंट्रीज। इसको टॉप करने वाली जो स्टेट थी वो थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप पे यूएसए, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा फिनलैंड, कनाडा, थाईलैंड और इंडिया की रैंक आ जाती है 66 पोजीशन पे। ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कुछ यूनिकॉर्न्स की। यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न वो एक स्टार्टअप है जिसकी मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो गई है। तो अभी रिसेंटली इंडिया ने क्या करा, यूके थर्ड नंबर पे था विद मोस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स। इंडिया ने यूके को डिस्प्लेस कर दिया, यूके अब फोर्थ नंबर पे, इंडिया थर्ड नंबर पे आ गया है। ठीक है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो कि अभी इसका डाटा रिलीज किया गया था ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, दोनों चीज़ याद रखनी है। इंडिया की क्या रैंक रहेगी? थर्ड, बाय एडिंग 33 यूनिकॉर्न्स इन 2020 में इंडिया ने 33 स्टार्टअप्स ऐड किए जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा है। और अब फोर्थ पे आ गया है आपका यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, आपको देखना है फर्स्ट पोजीशन पे सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स या फिर यूनिकॉर्न्स का है यूएसए के पास, सेकंड चाइना, थर्ड इंडिया हो गया, फोर्थ यूके एंड फिफ्थ जर्मनी। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुड गवर्नेंस इंडेक्स की। गुड गवर्नेंस इंडेक्स अगर आपको याद हो, हमने बात किया था कि 25 दिसंबर को, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका जन्मदिन होता है। इस दिन हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? गुड गवर्नेंस इंडेक्स। इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं गुड गवर्नेंस डे। और इसीलिए अभी एक गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी रिलीज किया गया जिसमें बताया गया जो स्टेट जिसने टॉप किया इन गुड गवर्नेंस इंडेक्स वो है गुजरात, और दिल्ली ने टॉप स्पॉट वहाँ पे सिक्योर किया इन गुड गवर्नेंस इंडेक्स। और गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अमित शाह जी के द्वारा ये डाटा गुड गवर्नेंस इंडेक्स का रिलीज किया गया था। इसमें बताया गया कि जिसने टॉप किया वो है गुजरात अलॉन्ग विद दिल्ली और फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड गोवा। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेट हेल्थ इंडेक्स की। नीति आयोग के द्वारा अभी ये स्टेट हेल्थ इंडेक्स रिलीज किया गया जिसका 4th एडिशन अभी रिलीज किया गया था अलॉन्ग विद नीति आयोग प्लस वर्ल्ड बैंक। याद रखना, इन दोनों ने मिलके ये अभी स्टेट हेल्थ इंडेक्स रिलीज किया है आपका। ऑलराइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, 4th एडिशन है इसका। अगर मैं नीति आयोग के वाइस चेयरमैन की बात करूं, डॉक्टर राजीव कुमार, सीईओ हैं अमिताभ कांत। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक के सीनियर हेल्थ स्पेशलिस्ट शीना छाबरा के द्वारा ये डाटा मिलकर लिया। तो मेन तो आपको दो ये ऑर्गेनाइजेशन याद रखनी है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डाटा रिलीज किया गया था। ठीक है, आइए अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। ये एकदम मैंने वन लाइनर्स आपके लिए बना के रखे हैं ताकि आपको टू द पॉइंट चीज़ मिले। अब जैसे अगर मैं पूछूं ग्लोबल पीस इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया गया, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स रिलीज किया गया। इंडिया की क्या रैंक? 135। टॉप किसने किया? आइसलैंड ने। टोटल कंट्रीज कितनी थी? 163। लास्ट पे कौन आया? अफगानिस्तान। तो ये ग्लोबल पीस इंडेक्स का सारा डाटा हो गया वन लाइनर फॉर्मेट में। कितनी अच्छी चीज़ है। फिर नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स किसने रिलीज किया? चैरिटीज एड फाउंडेशन के द्वारा रिलीज किया गया। टोटल कंट्रीज कितनी? 114। इंडिया की क्या रैंक रही? 14। टॉप किसने किया? इंडोनेशिया ने टॉप किया। और बॉटम पे कौन रहा? जापान आपका बॉटम पे रहा। काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की। रिलीज किसके द्वारा किया गया? रिपोर्ट्स विद बॉर्डर्स के द्वारा इसको रिलीज किया गया। इंडिया की 142वीं रैंक। टॉप किया नॉर्वे ने। 180 कंट्रीज का टोटल डाटा रिलीज किया गया। ऑलराइट, ये रहा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इंडिया की क्या रैंक रही? 142। क्योंकि अभी मीडिया पे बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं इंडिया में, तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि रिपोर्ट्स विद बॉर्डर्स के द्वारा, विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा रिलीज किया गया। और इंडिया की रैंक क्या रहती है? 142। नीचे अगला आ जाता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इंडिया की रैंक सबसे पहले 140वीं रैंक। बहुत खराब रैंक है इंडिया की ग्लोबल जेंडर गैप में। फिर टोटल कंट्रीज 156 हैं। रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और इसमें जिसने टॉप किया वो है आइसलैंड। नेक्स्ट यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। टोटल कंट्रीज 149, इंडिया की 139। टॉप फिनलैंड। इंडिया की रैंक कितनी खराब है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में? देखिए टोटल 149 में से सिर्फ 139 रैंक आती है। तो इंडिया में बहुत कम हैप्पीनेस है देखी जाए तो, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। ऑलराइट,
तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम सिमिलर टाइप का सेशन आपके लिए लाते रहें एंड फ्यूचर में सिमिलर टाइप का कंटेंट आपको मिलता रहे, तो आपको कुछ नहीं करना, जाके आपको सिर्फ कमेंट करना है और हमें बताना है कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। आपकी सजेशन जो भी हैं वो आप नीचे कमेंट कीजिए, ताकि हम अगली वीडियो में ट्राई करें कि आपकी सारी विशेज़ या जो भी सजेशन है उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो फ्रेंड्स आई होप आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया होगा हमारे चैनल को, कि वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।